پر ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخاب نشان کیس کی سماعت بیرسٹر گوہر علی اور بیرسٹر علی ظفر ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ دونوں کے پہنچنے سے قبل جسٹس اعجاز انور نے کہا، کیا کیس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے؟ سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز ہوتے تھے تو ہم صبح سویرے پہنچتے تھے، ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بینچ کو انتظار کروایا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو، پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس اعجاز انور، جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، کچھ شکایت کنندہ تھے، الیکشن کمیشن میں ان کو نوٹس نہیں ہوا، آج وہ نہیں آئے ہیں، ان لوگوں کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہا گیا بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے۔ وہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے پارٹی ممبر نہیں ہیں، بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے اعتراض تو انٹرا پارٹی انتخابات پر کیا ہے، عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا، یہ کیس صرف ہمارا اور الیکشن کمیشن کا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو فریقین ہیں وہ تو چاہتے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ ہوں۔ جون 2022 میں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق کرائے۔ 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے جون کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا اور کہا دوبارہ کرائیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کیا ان کے پاس یہ اختیار تھا؟ نہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، یہ کہا گیا بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 دسمبر کو پشاور میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، ہم نے انتخابات کرائے اور سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا 7 دن میں سرٹیفکیٹ کو ویب سائٹ پر کمیشن نے جاری کرنا تھا، ابھی تک نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے الیکشن پر مختلف اعتراضات اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ پارٹی ممبر نہیں ہے۔ علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے 30 سوالات دیے ہیں کہ ان کے جوابات دیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کمیشن نے پارٹی جنرل سیکریٹری پر سوالات اٹھائے کہ یہ ٹھیک منتخب نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمشنر کو تعینات کرنے کا جنرل سیکریٹری کو اختیار نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ الیکشن ڈسپیوٹ حل کریں۔ جسٹس سید ارشد علی کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا، جس پر علی ظفر نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں نشان نہیں ملتا تو پھر ہماری مخصوص نشستیں نہیں رہیں گی، ہم پرسوں کے لیے ملتوی کر لیں تو جو فریقین ہیں اس کو بھی سنیں گے، یہ کہا گیا جسٹس اعجاز انور کی جانب سے۔ کل یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے، وکیل الیکشن کمیشن 11 کو عدالت کیس سنے، خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر چیلنج کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا اس کو آج ہی سنا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے سیکریٹری جنرل چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر سوالات اٹھائے۔ علی ظفر نے کہا کہ ہم نے جون میں الیکشن کرایا اور پھر نومبر میں الیکشن کمیشن کہتا ہے ٹھیک نہیں تھے، الیکشن کمیشن نے 20 دن میں دوبارہ انتخابات کرانے کا کہا تھا، پھر ہم نے انتخابات کرائے تو دوبارہ کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم سے نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر آپ کو دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا بھی کورٹ روم میں موجود ہیں۔ اظہر فاروق سے مزید جانیں گے۔ اظہر بتائے گا اس بارے میں۔ خالد، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کے کورٹ روم میں سماعت کی ہے۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی بھی ٹیم کے ہمراہ کورٹ روم کے اندر موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اور بہنیں بھی کورٹ روم کے اندر موجود تھیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی بھی وکلاء کے ہمراہ کورٹ روم میں موجود تھے، جبکہ میڈیا کی بڑی تعداد بھی آج کی کارروائی میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے اظہر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت جاری ہے، جس میں بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا، نیب، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ اور بہنیں بھی کورٹ روم میں موجود ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ایک بار پھر جانیں گے۔ بتائیے گا اس وقت وہاں پر سماعت جاری ہے، کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ جی خالد، یہ سماعت جاری ہے اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل کے کورٹ روم میں سماعت کر رہے ہیں، جبکہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔
بانی PTI ان کی اہلیہ اور بہنیں بھی کورٹ روم کے اندر موجود ہیں. میڈیا کی بڑی تعداد بھی کو آج کورٹ روم کے اندر دعوت دی گئی تھی. میڈیا کی بڑی تعداد بھی موجود ہے وہاں پہ, جبکہ بانی PTI اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے. بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کی گئی ہے. اس موقع پر یہ سماعت جاری ہے اور باضابطہ طور پر جو فرد جرم ہے وہ بانی PTI اور ان کی اہلیہ پر عائد کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے, تفصیلیں آگاہ کر رہے ہیں. توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت, بانی PTI اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد. بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی. بانی PTI کے وکلا بھی کورٹ روم میں موجود. نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی بھی ٹیم کے ہمراہ موجود. بانی PTI, ان کی اہلیہ اور بہنیں کورٹ روم میں موجود ہیں. توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت, بانی PTI اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی. پیپلز پارٹی سندھ نے صوبے سے نامزد امیدواروں کے سوا تمام پارٹی امیدواروں کو اپنے حلقوں سے دستبردار ہونے کی ہدایت کر دی ہے. سنجے سادھوانی سے مزید تفصیلات لیں گے. جی سنجے, بتائیے گا. پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے سندھ میں اپنے امیدوار جو پارٹی کے تھے انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جن کو پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دیے گئے ہیں ان کے علاوہ جن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں وہ واپسی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو کر پیپلز پارٹی کے رابطہ سیکرٹری کے پاس جو ہے رسید ارسال کی جائے کہ اس فلاں امیدوار کے حق میں ہم دستبردار ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے حمایتی جو امیدوار ہیں ان کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر کے علاوہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو ہمیں انفارم کیا جائے تاکہ ان کے خلاف پارٹی کی تنظیمی کارروائی کی جا سکے. پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ ہم 8 جنوری کو ملک بھر میں سرپرائز دیں گے اور سندھ میں ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہم نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے علاوہ کوئی جیالہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. بہت شکریہ سنجے سادھوانی. الیکشن ٹرائبیونل نے NA 132 لاہور سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عابد خان سے. جی عابد, بتائیے گا. جی, لاہور کے NA 132 میں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل جو ہے وہ الیکشن ٹرائبیونل نے مسترد کر دی ہے اور جو RO کا فیصلہ اسے برقرار رکھا ہے. اپیل کنندہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہے اور انہی کے ایما پر مسلم لیگ نون کے ورکرز نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. آئین و قانون کے مطابق وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, اس لیے ٹرائبونل جو ہے وہ RO کی جانب سے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے. ٹرائبونل نے آج جو ہے اس اپیل کی سماعت کرتے ہوئے اس اپیل کو غیر ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. بہت شکریہ عابد خان تفصیلات کے لیے. الیکشن ٹریبیونل نے PTI رہنما شیر افضل مروت کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی. ٹریبیونل نے شیر افضل مروت کے NA 32 سے کاغذات درست قرار دے دیے. ٹریبیونل جج جسٹس وقار احمد نے اپیل منظور کی. بانی PTI نے اعتراف کیا ہے کہ دی اکانومسٹ میں مضمون انہوں نے نہیں لکھا. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کیا گیا تھا. موجودہ چیئرمین PTI نے ریاست اور امریکہ مخالف مواد کی توثیق نہیں کی. کچھ نیم خواندہ اینکرز اور دی اکانومسٹ فریب کاری پر شادیانے بجا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے عمر ڈار کی حراست سے متعلق درخواست نمٹا دی. بات کریں گے اپنے نمائندے عابد خان سے. جی عابد, آگاہ کیجیے. آج عمر ڈار کی بازیابی کے لیے ان کی والدہ ریحانہ ڈار کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کی اور عدالت نے یہ درخواست اس بنیاد پر نمٹا دی کہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عمر ڈار کی جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور گجرات پولیس نے جو ہے انہیں گرفتار کر کے سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اب جو ہے وہ ملزم کو جو ہے باقاعدہ طور پر جسمانی ریمانڈ کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس پر جسٹس علی باقر نقوی نے عمر ڈار کی والدہ کو کہا کہ اگر اب آپ جو ہے وہ ان کی رہائی چاہتی ہے تو آپ کو درخواست ضمانت دائر کرنی چاہیے. عدالت نے اب یہ درخواست نپٹا دی ہے. درخواست میں ریحانہ ڈار کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چونکہ خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں, اسی بنیاد پر ان کے بیٹے عمر ڈار کو اغوا کر لیا گیا اور ابھی تک پولیس نے انہیں جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں پیش کیا گیا, نہ ہی اس کے متعلق کچھ بتایا گیا. آج پولیس کی جانب سے بتا دیا گیا کہ عمر ڈار کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور اب جو ہے اس کو سیالکوٹ پولیس کی حراست میں ہے. بہت شکریہ آپ کا عابد خان.
पेशावर हाई कोर्ट में NA 15 से आसम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज कुनंदा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने FIA से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील ने कहा कि FIA केस में इश्तिहारी होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ये केस 2022 का है। और अहम मामला बानी PTI के NA 122 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हल्का 122 से बानी PTI की कागजात पर फैसला महफूज कर लिया है। आज अदालत में दोनों अतराफ से जो वकला थे उन्होंने अपने जो है वो दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। रिटर्निंग अफसर ने पेश होकर बताया कि 2 वजूहात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। एक तो ये कि तोशा खाना में सजा याफ्ता और नाअहल करार दिया गया, और दूसरा उनका तजवीज कुनंदा जो है वो इसी हल्के का नहीं था। इस पर बानी PTI के वकील ने अदालत को ये बताया कि तोशा खाना की सजा आर्टिकल 62-63 नहीं उतरता। ये इसी तरह की सजा है जैसा कोई पटवारी सजा, तो उसकी सजा पर जो है वो आर्टिकल 62-63 नहीं लगता। अदालत ने करार दिया कि जब एक सजा मौजूद है तो उसका क्या किया जाएगा, आप इस बात पर दलाइल दें। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 30 नवंबर के बाद किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सिर्फ 2 हल्कों के मुतालिक था, ओवरऑल किसी के मुतालिक नहीं था। उनका ये कहना था कि तोशा खाना में जो सजा हुई वो बाइंडिंग है, अभी सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, जुर्म खत्म नहीं हुआ, इसलिए एक कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अदालत ने जो है वो अपना फैसला महफूज कर लिया, जो कल ट्रिब्यूनल जो है ये अपना फैसला अनाउंस करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आबिद खान। अहम खबर देंगे आपको। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई है। बाबर मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। बाबर मलिक, बताइएगा। जी सानिया, 9 मई GHQ हमला समेत 12 मुकदमात जो है सादारों पर, अमारतों पर और मकामात पर हमलों के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। इन मुकदमात में GHQ हमला केस में इस वक्त बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी डाली गई है, और रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो दर्ज मुकदमात हैं इनके SHOs जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है, और अदालत से इन मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की जो है बानी चेयरमैन के लिए इस्तदा की जा रही है कि इन्हें जिस्मानी रिमांड पर इनके हवाले किया जाए। ताहम अदालत से में ये भी देखा जाए कि सिक्योरिटी पर वजूहात की बिना पर वीडियो लिंक्स या अदालत इन्हें जेल के अंदर ही इन्हें शामिल तफ्तीश करने या दौरान रिमांड इन्हें तफ्तीश करने की इजाजत दे सकती है। फिलहाल इब्तदाई तौर पर जो इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल हुई हैं उनके मुताबिक रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। सानिया, 9 मई में जो मतलूब है बानी चेयरमैन, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और जिस्मानी रिमांड के हवाले से अदालत से इस्तदा कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक तफसीलात के लिए। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच बानी PTI की 5 साला नाअहली और इलेक्शन की इजाजत की दरख्वास्तों पर 12 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। दरख्वास्तों में मौकफ इख्तियार किया गया है कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आईनी तौर पर नाअहल किया। अदालत इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दे। केस के फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। फवाद चौधरी की NA 60-61 से कागजात मुस्तरद होने की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने महफूज फैसला सुना दिया है। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। बाबर, आगाह कीजिएगा, अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं फवाद चौधरी की। जी हाँ, ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल जो है ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से जो महफूज फैसला था वो सुनाया गया है, और इस फैसले से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को एक बड़ा सियासी झटका लग गया है। फवाद चौधरी को NA 60 और NA 61 जेलम से जो इनकी अपीलें थी RO के फैसले के खिलाफ, उनको मुस्तरद कर दिया गया, और जो RO का फैसला है दोनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का, उस फैसले को बरकरार रखा। यूं इन दोनों हलकों के लिए फवाद चौधरी नाअहल करार दे दिए गए। उनकी अपीलें अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए बाबर। फवाद चौधरी की NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज किया।
फवाद चौधरी कहाँ हैं, उनको पेश किया जाए। जज की जानिब से पूछा गया। चौधरी अब्दुल अजीज फवाद चौधरी को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। वकील फैसल फरीद फवाद चौधरी को यहां लेकर आए तो फिर वापस क्यों ले गए। चौधरी अब्दुल अजीज जो जज हैं उनकी जानिब से कहा गया, पता चला है कि फवाद चौधरी को यहां से वापस लेकर चले गए हैं, अभी यहां लेकर आए तो फिर कहां वापस ले गए, ये क्या ड्रामा चल रहा है। जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। गलती से फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले गए हैं, जज चौधरी अब्दुल अजीज की जानिब से कहा गया। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में मुबैना खुर्द-बुर्द केस में 12 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जहांगीर असलम से मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की जिस्मानी रिमांड जो है 3 रोज मजीद जो है इजाफा कर दिया है। जो कि मोहम्मद बशीर इंसाफ अदालत के जज हैं, वो अडियाला जेल में एक और केस की समाअत के लिए वहां पर कार्रवाई के लिए गए हुए थे। जो कि स्पेशल जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने जो है अदम हाजिरी पर मोहम्मद बशीर की केस पर समाअत की, जिस पर सबसे पहले उनके वकील ने एतराज उठाया कि अगर जज छुट्टी पे हो तो ड्यूटी जज समाअत कर सकता है, अगर जज छुट्टी पे ना हो तो वही जज सुनेगा। जिस पर जो नेब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन और दीगर ला पेश कर दिए थे। फवाद चौधरी के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि ठीक है, आप जो है केस को कल तक के लिए, क्योंकि आप ड्यूटी जज हैं, क्योंकि हमने दूसरी अदालत में आर्गूमेंट अपने कंप्लीट कर दिए हैं, और आप जो है कल तक के लिए जिस्मानी रिमांड अगर तोसी करना चाहें तो तोसी कर दें। जिस पर अदालत ने जब रजिस्ट्रार से पूछा कि जी कल जो है मोहम्मद बशीर जो कि इंसाफ अदालत के जज हैं दस्तयाब हैं, जिस पर बताया गया कि वो कल भी दस्तयाब नहीं है। जिस पर फैसला महफूज करने के बाद अब फैसला सुना दिया गया है। फवाद चौधरी की जिस्मानी रिमांड 3 दिन की मजीद तोसी कर दी है और 12 तारीख को दोबारा फवाद चौधरी को इंसाफ अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जी जहांगीर, शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, जुल्फिकार मिर्जा के बेटों के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे असगर उमर से। असगर, बताइएगा। 223 बदीन थे। आरओ ने हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। हसाम मिर्जा NA 233 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PS 70 से हसनैन मिर्जा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इनके खिलाफ कागजात के नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन आज इनके वकीलों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस शर्त की बुनियाद पर उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं वो उनके वालिदैन का से ताल्लुक रखता है। औलादों पर उस कानून का इतलाक नहीं होता और ये खुद इंडिपेंडेंट अपना कारोबार और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन पर वो इतलाक नहीं हो सकता। ये डिपेंडेंट नहीं है उन अफराद के जिनको नाअहल करार दिया गया है। अदालत ने इस मौके से इत्तफाक करते हुए हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। बहुत शुक्रिया असगर उमर तफसीलात के लिए। और तंगवानी के करीब इंडस हाईवे पर डाकुओं की वैन पर फायरिंग, वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। अली हसन मलिक से मज़ीद तफसीलात लेंगे। अली हसन, बताइएगा। ये तंगवानी के करीब थाना डेरा की हदूद में मुसाफिर जो कनकोट से जैकम्बाद जा रही थी, मुसल्लह डाकू ने लूटमार करने के इरादे से वैन पर फायरिंग की। फायरिंग की वजह से ड्राइवर नबील गबूल जख्मी हुआ, जिसको नाज़िक हालत में मुंतकिल किया है, जबकि डाकुओं ने मुसाफिर में लूटमार की और लाखों रुपए नकदी और मोबाइल सीधर फरार हो गए। ट्रक ऐसे ड्राइवर एसोसिएशन ने अपना रोड ब्लॉक कर दिया और एसोसिएशन का कहना है कि वेनू और मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग हो रही है, जिससे लोग जख्मी और अली हसन इस हवाले से आगाह करे थे। डाकू मुसाफिरों को लूट कर फरार हो गए और बाकी के खिलाफ वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पाक सऊदी अरब तुर्की सैफरीकी दिफाई ताउन से मुताल्लिक दूसरा इजलास रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। क्या तफसीलात हैं, लईक उर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक। जी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और सैफरीकी दिफाई ताउन इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। दूसरा इजलास था ये सैफरीकी ताउन का, जिसमें दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहकीक को तरवीज में ताउन पर बातचीत की गई। इसके अलावा तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इजलास में दिफाई शोबों में होने वाली कामयाबियों को आपस में बांटने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस इजलास में मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि आइंदा इजलास फरवरी में रियाद में मुनक्किद होगा। जी ठीक है, आइंदा इजलास फरवरी में रियाद में मुनक्किद किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे आप लईक उर रहमान, शुक्रिया। इस इजलास में दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी, तहकीक व तरवीज में ताउन पर गुफ्तगू की गई, जबकि ये भी तय किया गया कि आइंदा सैफरीकी इजलास फरवरी में रियाद में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन से मुताल्लिक
तीसरा इजलास। बात करेगा नुमाइंदे लईक और रहमान से। जी लईक, आगाह कीजिए। जी फैसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुतल्लिक ये तीसरा इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ है, जिसमें बाहमी तारीखी बिरादराना करीबी तल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया और साथ ही शुरा की तरफ से सिक्योरिटी माहौल पर भी बातचीत की गई। दोनों जानिब से फौजी टेक्नोलॉजी में तरक्की और मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर भी गौर किया गया। दोनों जानिब से दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के लिए जो बाहमी ताउन है उसको बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया है और साथ ही दिफाई ताउन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मजीद नई राहें तलाश करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। जी देखो रहमान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। MKM पाकिस्तान और नून लीग की कमेटियों के दरमियान दोनों जमातों में कराची की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का फैसला हो गया है। राफे हुसैन से मजीद तफसीलात लेंगे। जी राफे, बताइएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 7 मुलाकातों के बाद अब कराची की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का फैसला हो गया है और जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मलीर NA 229 और NA 230 और इसकी सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि मलीर की तीसरी जो कौमी असम्बली की नशिस्त है 231 की, उसकी कौमी और सूबाई असम्बली पर MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जबकि ये भी फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जिला जनूबी लियारी NA 239 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि मीरपुर खास, नवाबशाह और सक्खर की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। दोनों जमातों ने फैसला किया है। जिला किबाड़ी NA 242 पर अब तक दोनों कमेटियां कोई फैसला नहीं कर सकी हैं। NA 242 पर दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त डेडलॉक है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में दोनों जमातों की क़यादत जो है इस पर बातचीत करके कोई हतमी फैसला करेगी। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ है, जबकि मुस्तफा कमाल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी ने इस नशिस्त पर कादिर मंदोखेल को टिकट जारी कर दिया है। बस इसी नशिस्त पर जो है। ठीक है, राफे हुसैन इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। शहजाद आलम से मजीद जानेंगे। शहजाद, बताइए इस खबर से मुतालिक। जी खालिद, बिल्कुल इस तरह है कि मुराद सईद जो कि PK4 से NA4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा कराए थे और मुकामी RO ने उनके कागजात मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हाई कोर्ट इलेक्शन अपीलेंट कोर्ट में गए थे, जहां पर अब से कुछ देर कबल ही मुराद सईद की अपील खारिज कर दी गई और उनके कागजात नामजदगी जो RO ने मुस्तरद किए थे वो फैसला बरकरार रखा गया है। वो मुकामी अदालत का कहना था कि मुराद सईद ने जो मुख्तियारनामा दिया है वो अटेस्टेड नहीं है और न मुराद सईद खुद पेश हुई। इस सिलसिले में जब मेरी बात हुई साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल सुहेल सुल्तान से, तो उनका कहना था कि इस फैसले के खिलाफ वकला की मुशावरत जारी और इस सिलसिले में हम इलेक्शन अपीलेंट कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जी ठीक है शहजाद, तफसीलें नागा करने के लिए शुक्रिया आपका। कुछ आम खबरें शामिल करते हैं। कराची का इलाका लियाकताबाद अंडरपास, यहां गाड़ी पर फायरिंग हुई है, एक शख्स जामाक हो गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, आगाह कीजिए। ये लियाकताबाद अंडरपास है जिसमें फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स जिसका नाम शकील शेख के नाम से शनाख्त हुई है, वो जाबाक हुआ है। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचा के मुताबिक जो मकतूल है वो एक कंपनी का अकाउंटेंट बताया जा रहा है, जिसकी लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अंडरपास में गाड़ी को रोककर मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि ये वाकया कैसे पेश आया और क्यों पेश आया, और इस हवाले से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका नजीर। पुरअमन एहतजाज करने वाली शरीफ खातून को जेलों में डाल देंगे तो इसका मतलब है शराफत जेलों के अंदर चली गई, तो बाहर कौन है? जिनको धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने बड़े गुस्से में कहा था आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े। आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज अपना पुरअमन एहतजाज किया था, आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है, तो बाहर कौन है? जिनको आजकल
कोर्ट धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं। मीडिया पर खबरें ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को। खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था आप इलेक्शन करवाएं, और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। हमारा भाई अगर जेल में, हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, बाकी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने ऐसे अजीम लीडर के लिए उन लोगों ने क्या कर, ड्रामे की सीरीज चल रही है, इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है। आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं कि देखो मेरे खिलाफ जो भी खड़े उसको अंदर कर दो, ये अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इसको मेरे खिलाफ इसको नाहल कर दो, उसको नाहल कर देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, फैसला कब सुनाया जाएगा? देखिए, अभी मुख्तसर वक्फा किया गया। दोबारा राब्ता करेंगे राजा मोहसिन एजाज से अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने से मुतालिक फैसला महफूज। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत में 10 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में केस के समाअत में 10 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने से मुतालिक फैसला महफूज। आम इंतखाबात के दौरान मीडिया को इलेक्शन सर्वे से रोकने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। पाबंदी का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के हवाले से जारी किया गया। ये कहा गया वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा इलेक्शन डे से पहले मीडिया सर्वे और प्रोग्राम्स कर सकता है। क्या तफसीलात हैं, आबिद खान बताएंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, जस्टिस अली बाकर नकवी ने आम इंतखाबात के दौरान मीडिया को इलेक्शन सर्वे और प्रोग्राम करने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की और अदालत ने ये दरख्वास्तें अब निपटा दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में जो है उस नोटिफिकेशन के साथ पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के हवाले से जारी किया है। इलेक्शन डे से पहले मीडिया सर्वे प्रोग्राम्स कर सकता है और जो मुख्तलिफ हल्कों के मसाइल है उनको उजागर कर सकता है। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन डे पर भी मीडिया जो है वो तमाम तर इंतखाबी अमल जो है वो उसकी कवरेज कर सकता है, जिसकी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल और उनके वकील के जवाब के बाद ये तमाम दरख्वास्तें निपटा दी है। मैं बताता चलूं कि सहाफी अजीम अकरम और मुनीर बाजवा की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें मौका इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर सर्वे प्रोग्राम्स करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जो बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी है, और इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस पर आज इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाब और रिपोर्ट के बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। ठीक है, दरखास्तें निपटा दी गई हैं। आबिद खान आगाह कर रहे थे आम इंतखाबात के दौरान मीडिया को इलेक्शन सर्वे से रोकने के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत हुई। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि पाबंदी का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के हवाले से जारी किया गया। इलेक्शन डे से पहले मीडिया सर्वे और प्रोग्राम्स कर सकता है। इलेक्शन डे पर भी मीडिया इंतखाबी अमल की कवरेज कर सकता है। सिंध की सतह पर सीट एडजस्टमेंट के मामले पर पीपी और जेयूआई में इख्तलाफात, मामला क्या है, संजय साधवानी से जानते हैं। बताइए संजय। जी बिल्कुल, जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से बातचीत जारी थी, लेकिन अब इनमें इख्तलाफात आ गया है, डेडलॉक पैदा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के तमाम हलकों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में किसी भी जीती हुई सीट जेयूआई को देने को तैयार नहीं थी। जेयूआई की जानिब से सिंध में सूबाई सीटों समेत एक कौमी असेंबली की सीट का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालबा किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी की क़यादत को बताया कि हमारे रवायती हल्के हैं जहां से हम हमेशा जीतते रहे हैं, अगर ये हल्के जेयूआई को अभी दिए तो आइंदा भी जेयूआई इस किस्म की सियासत करेगी और हमें ऐसी कोई बात नहीं माननी चाहिए जिससे हमारे अपने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नाराज हो, जिसके बाद ये डेडलॉक पैदा हो गया और इख्तलाफात बढ़ गए। शुक्रिया संजय साधवानी।
ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے. فیض آباد دھرنا کمیشن ٹی ایل پی رہنماؤں کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹی ایل پی پنجاب کے مختلف رہنماؤں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے. دھرنا کمیشن نے اس وقت کے چیئرمین پیمرا افسر عالم کا بیان قلم بند کر لیا ہے. فیض آباد دھرنا کمیشن ٹی ایل پی رہنماؤں کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ. ٹی ایل پی پنجاب کے مختلف رہنماؤں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے. دھرنا کمیشن نے اس وقت کے چیئرمین پیمرا افسر عالم کا بیان قلم بند کر لیا. اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن حکام کو کوئی دھمکی نہیں دی. بانی پی ٹی آئی نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وقت پر الیکشن نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگے گا. ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے متعلق کہا آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے. فواد چودھری نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا اس سے متاثر الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. میرے کاغذات 2 اکاؤنٹ کو جواز بنا کر مسترد کیے گئے.